Hello friends, today I'm going to show you how you can do the RAID partitioning. Okay, so I'm going to discuss about partitioning RAID devices. Means RAID device का partition कैसे करेंगे. So the simple trick is to partition RAID devices to create LVM over RAID. Okay, so if you configure LVM over RAID in this way, you can easily configure or you can easily partitioning RAID device. This is the only way to partitioning RAID device. What is that? That is to configure LVM over RAID. So first of all, you need to configure RAID, and then using RAID means above the RAID, you need to configure LVM. Let me show you how. First of all, check the partition. By default, there are two partition. I am going to create more partition for the RAID. So fdisk dev SDA. So I am going to create a new partition. I am going to create primary partition. Okay, so primary number 3, 2 already created. So 3, giving the size, suppose 4 GB. Okay, 4 GB. Now new partition again, primary, and giving the same size, 4 GB. So I have created two partition, dev SDA3 and dev SDA4. Each size is 4 GB. दोनों का साइज SDA3 SDA4 दो पार्टीशन हमने क्रिएट किया, दोनों का साइज 4 GB है. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट देम in the RAID type because so that our operating system will know that I am going to use this as a RAID device. मतलब हमने तो दिमाग में रख लिया है कि हम इसको रैड में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये बात हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बताना होगा कि SDA3 और SDA4 पार्टीशन को हम रैड में यूटिलाइज करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू चेंज द टाइप. सो जस्ट प्रेस टी एंड चेंज द टाइप ऑफ SDA3 and SDA4. So first of all, I'm going to change the 4, and the code for RAID is FD. Okay, so you can simply type FD, simply type T and change the code for number 3, and that is code is FD. Now let's confirm by using P. हमने कोड चेंज कर दिया, दोनों का टाइप चेंज कर दिया रैड में SDA3 और SDA4 का, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे सेव करने से पहले. तो हमने प्रिंट करके कंफर्म कर लिया. अब देख सकते हो SDA3 और SDA4 के सामने लाइनेक्स रैड लिखा हुआ है. इसका मतलब ये दोनों ही पार्टीशन रैड में यूज होने के लिए रेडी हैं. Now save this. You can now save it by using W, just W for write or save. And after that, you know that every time you make any changes in the partition table, either you need to reboot the system or you need to run the part from command. So reboot is not a good concept because when you are working on a server पे जब आप काम करते हो, then it's not possible to reboot the system all the time. Okay, so that's why we use part pro. Now check the partition fdisk-l. Okay, and you can see SDA3 SDA4 ready. Now I am going to create RAID using SDA3 and SDA4. How to do that? mdadm dash create dash dev md1. This is the RAID device name. Now I want to create RAID label RAID1, so I will just type here dash label is equal to 1, and this dash RAID devices is equal to 2. How many RAID devices? 2. कौन से दो हैं? dev SDA3 and dev SDA4. So we will mention the name of the partition dev SDA3 and dev SDA4 and press enter. Done. Press Y here, and the RAID is being ready. तो RAID डिवाइस बनना शुरू हो चुका है. दोनों आपस में मिररिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे. अगर आपको डिटेल चेक करना है तो पहले मैं क्लियर स्क्रीन करता हूं एंड mdadm कमांड चलाकर डैश डिटेल चेक कराता हूं आपको RAID डिवाइस का नाम देकर. तो RAID डिवाइस का नाम था हमारा dev md1. तो dev md1 करेंगे और आपको दिख जाएगा कि ये हमारा RAID रेडी हो रहा है. 78% रिब्यूल्ड स्टेटस 78%, यानी थोड़ी ही देर में ये 100% हो जाएगा. तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये 100% हो चुका है. dev SDA3 dev SDA4 दोनों ही रेडी हो चुके हैं. अब इस RAID को पार्टीशन कैसे करेंगे? तो RAID डिवाइस तो बन गया, इसको पार्टीशन करने के लिए इसके ऊपर LVM क्रिएट करना होगा. कैसे क्रिएट करना होगा? तो ये बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है? LVM का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना. तो PV क्रिएट करेंगे हम लोग, यानी जो RAID डिवाइस बना है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फिजिकल वॉल्यूम हमने कन्वर्ट कर दिया इस कमांड से, PV क्रिएट कमांड से. आप इसको देख सकते हो, PV डिस्प्ले कमांड से देख सकते हो. तो PV नेम यानी जो फिजिकल वॉल्यूम का नेम क्या है? dev md1 3.73 GB, यानी लगभग 4 GB का ये बन गया हमारा.
अब इसको हम वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने का कमांड होता है वीजी क्रिएट, नाम दे दो VG00 नाम दे दिया हमने, और जो भी फिजिकल डिवाइस का नाम है वो नाम दे दिया हमने। तो फिजिकल डिवाइस है DevMD1, उसको मिलाकर हमारा बन गया वॉल्यूम ग्रुप VG00। इसको देखना हो तो आप VG डिस्प्ले कमांड इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको वॉल्यूम ग्रुप का कंप्लीट डिस्प्ले दिख जाएगा। तो आपको इसका साइज दिख जाएगा, वॉल्यूम ग्रुप साइज, यानी VG साइज जो है वो वॉल्यूम ग्रुप का साइज है, जो कि है 3.73 GB अप्रोक्स 4 GB, ठीक है, जो कि हमारा रेड का साइज था। अब इसके ऊपर हम चाहे तो 1 GB का LVM बना सकते हैं, ठीक है, LV1 LV2 LV3 जितना भी चाहो, जैसे LV क्रिएट, और हम लोग लॉजिकल वर्म क्रिएट करें, -L लेंथ देते हैं 1G, ओके, 1G देते हैं 1 GB का, -N नाम देते हैं LV1, ठीक है। और ये किससे बनेगा, ये वॉल्यूम ग्रुप से VG00 से, तो वॉल्यूम ग्रुप का नाम दे देंगे यहाँ पे। तो LV1 क्रिएट हो चुका है 1 GB का, आप देख सकते हो LV डिस्प्ले कमांड से। तो आपको LV डिस्प्ले में LV जो साइज दिखेगा वो देख लो 1 GB का है, LV साइज इज 1 GB, और LV के नाम हो गया डेव VG00 LV1, 1 GB का बन गया। तो हमारा तो रेड तो 4 GB का है, उसमें 1 GB का पार्टीशन हमने बना लिया। फिर चाहे तो एक और 500 MB का पार्टीशन बना सकते हैं LV2 करके। तो क्या करना होगा आपको, सिंपली यहाँ पे नाम चेंज करना होगा LV2, और आप चाहो तो यहाँ पे 1 GB की जगह 2 GB का भी कर सकते हो, एक 500 MB का भी कर सकते हो, मैं 2 GB का कर देता हूँ। अभी आप देखोगे LV डिस्प्ले करोगे तो दूसरा जो लॉजिकल वॉल्यूम है LV2, उसकी साइज देख सकते हो, LV साइज 2 GB की बन गई है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में देखना चाहो LVS कमांड भी यूज कर सकते हो। तो 2 LVM हमारे पास हैं, LV1 LV2, और अच्छा ये दोनों ही LVM रेड के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों ही LVM रेड के ऊपर बने होते हैं। रेड का पार्टीशन हो रहा है, रेड एक हार्ड डिस्क की तरह हो गया, और उस हार्ड डिस्क में 4 GB की, और उसके अंदर हम लोग 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB से पार्टीशन बना सकते हैं। इसको यूज़ करना हो तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, MKFS.ext3 मान लो जिसको यूज़ करना है, LV1 को यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, डेव VG00 LV1, जो लो LV1 का नाम है उसको फॉर्मेट मार देंगे। फिर कोई डायरेक्टरी बना लेते हैं, MKDIR मान लो /C बना लिया हमने, और इसको माउंट कर देंगे, किसको, LVM को हमने माउंट कर देना है, MK डेव VG00 LV1 को हमने माउंट कर दिया /C में। और DF-H करके देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे में, देखो 1 GB का C ड्राइव दिख रहा है। ये जो C ड्राइव है ये LVM है, ठीक है, ये LVM के ऊपर बना हुआ, और ये जो LVM है ये रेड के ऊपर बना हुआ है, जो 4 GB का रेड है उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस LVM को रिडंडेंसी भी मिल रही है। तो यानी नीचे का कोई एक हार्ड डिस्क क्रैश कर जाता है HDF3 या HDF4 में से, तो आपका LVM फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि उसको वो 2 पार्टीशन से मिलकर बना हुआ है। तो एक पार्टीशन क्रैश भी करेगा, दूसरा है काम करेगा, यानी एक हार्ड डिस्क क्रैश कर गया तो दूसरा हार्ड डिस्क उसको लेकर चलेगा, वो काम करता रहेगा। अच्छा, इसको हटाने का प्रोसेस क्या है, पहले इसको अनमाउंट कर देंगे, अनमाउंट, यहाँ से अनमाउंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम रिवर्स चलते हैं। सबसे लास्ट में क्या किया था हमने, मैं हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया था। तो सबसे पहले लॉजिकल वॉल्यूम को हटाएंगे, कैसे, LV रिमूव, लॉजिकल वॉल्यूम का नाम दे देंगे, जो कि है डेव VG00 LV1 पूछेगा यस और नो, यस कर देते हैं। अच्छा, LV2 भी क्रिएट किया था तो उसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, LV2 को भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हमने क्रिएट किया था। दोनों ही डिलीट हो गए। LVS का कमांड चलाकर हम लोग चेक कर लेंगे, दोनों ही डिलीट हो चुके हैं। चलो, अब हमने आना है LVM खत्म, LVM के बाद आता है वॉल्यूम ग्रुप, उसको रिमूव करने के लिए VG रिमूव VG00 वॉल्यूम ग्रुप रिमूव हो गया। VG डिस्प्ले कमांड से इसको चेक कर लेंगे, अब नहीं है कोई भी वॉल्यूम ग्रुप, डिलीट हो चुका है। इसके बाद आता है फिजिकल वॉल्यूम, तो करेंगे उसको लिए FB रिमूव, जो कि नाम था हमारा डेव MD1 के ऊपर। तो अब डेव MD1 को हमने हटा दिया। अब PB डिस्प्ले करोगे तो आपको कोई भी फिजिकल वॉल्यूम डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने रेड डिवाइस को फिजिकल वॉल्यूम से हटा दिया, वाइप कर दिया। अब हमारा बचा रेड, क्योंकि रेड के ऊपर बना था। तो सबसे पहले रेड को स्टॉप करेंगे, MDADM -स्टॉप, जो कि रेड डिवाइस है उसको स्टॉप करेंगे, डायरेक्ट उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, हॉट रिमूव नहीं होता। उसको इस तरह से स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद हम इसको रिमूव करेंगे, पहले स्टॉप देन रिमूव, ठीक है, स्टॉप एंड देन रिमूव। तो हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद आप चाहो तो उसका डिटेल चेक कर सकते हैं, यानी जो हमने LVM को देखने का कमांड था क्या था, mdem क्रिएट mdem डेव डिटेल डेव MD1। तो आप देखेगा कि कोई रेड है ही नहीं, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। बचा पार्टीशन, ठीक है, अब बचा पार्टीशन आपका, तो आप पार्टीशन को लास्ट में डिलीट कर सकते हो, fdisk-l, ये 2 पार्टीशन बचे हुए, दोनों को डिलीट कर दो। कैसे डिलीट करेंगे, fdisk डेव SDA
डी फॉर डिलीट, किसको किसको डिलीट करना है, पहले 4 को डिलीट करना है, फिर डिलीट करना है किसको, 3 को डिलीट करना है। पी से प्रिंट करके देख लेंगे, दोनों डिलीट हो गए, कोई और डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, तो हम यहाँ से सेव कर देंगे, W फॉर सेव। और जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी आप कोई चेंजेस करोगे पार्टीशन टेबल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट प्रोब कमांड चलाना पड़ेगा, या तो सिस्टम को रीबूट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।